A very good morning to one and all. Today, for first three sessions, we have with us respected Dr. Ashish Linge sir. Sir, I welcome you on behalf of UGC HRDC Nagpur and from all the participants of pre-PhD coursework. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Friends, sir is the founder and director of Research Vidya, a research and statistic training and consultancy institute. He is working as a training and placement officer with Department of Business Management, CPN Berar College, Nagpur since 2001. He has done his PhD in business management and pursuing second PhD in economics. He has total more than 18 years of teaching and training experience. As far as his achievements are concerned, he has delivered lectures in more than 500 workshops on research methodology and statistical analysis. He has trained 5,000 plus PhD scholars and consulted more than 25 research projects. He worked as a resource person in several faculty development programs, orientation programs, refresher courses, ICT workshops, and IQAC workshops. He is working as a trainer for pre-PhD coursework for 4 universities, including our RTM Nagpur University. He has published several research papers in national and international journals. He has expertise on sampling, meta-analysis, SLR, research articles, synopsis and thesis writing, statistical analysis, hypothesis testing, factor analysis, questionnaire designing, literature review, and many other aspects related to either your dissertation, thesis, or research proposal writing. He is equipped with different types of softwares which are routinely used in our research and other aspects of research. So with this brief introduction, I once again welcome you, sir, and I request you to please enlighten the participants. फ्रेंड्स सर अपने आज के पहले 3 सेशंस लेंगे एंड सेम शेड्यूल विल बी फॉर टुमारो and day after tomorrow also. So total he will be having 9 lectures. He will cover majority of the part of unit 3, and so please be interactive with him. He will solve majority of your difficulties as well. Sir, we will prefer Hindi and English language. Right, ma'am. Okay, because there are some participants who are not able to understand Marathi properly. बट फ्रेंड्स ज्यांना Right. मराठीमध्ये क्वेश्चन्स विचारायचे असतील ते मराठीत पण क्वेश्चन विचारू शकता. सर कॅन स्पीक इन ऑल द 3 लँग्वेजेस, सो बी कम्फर्टेबल अँड बी इंटरॅक्टिव्ह. सर प्लीज स्टार्ट युअर सेशन. So thank you, ma'am. So at the outset, I just wish to extend my heartfelt thanks to Dr. Preeti Dharmik, Madam, Coordinator, NHRDC Center of Nagpur University. So today we are going to have discussions on the topic as you can see on the screen. So it happens to be my first day, and incidentally, it must be your day 3 of the research methodology coursework. And by far, you might have discussions on unit number 1 and 2, and I have been conferred with the responsibility to deal with some topics from unit number 3. And this is the topic, designing questionnaire and schedule. This is the topic I have been assigned, and I'll try to do justice with it. So for the next 3 hours, we'll be having core discussions on these particular topics. You just simply take a glance over your curriculum. This is a copy of your curriculum. You must be having a copy with you as well. So this is your unit number 3, and as you can read the heading of this unit, it is more specifically dealing with data collection and analysis part. And the curriculum or syllabus starts with this primary data. And in primary data, we are supposed to have discussions on designing questionnaires and schedule. And immediate after that, checking consistency, reliability, and validity of data. This part we are going to deal with in tomorrow's session for 3 hours. And today, the topics on cards for discussion, as I have already highlighted, the primary data, designing questionnaire and schedule. This part I am going to cover today. And along with that, we are going to have discussions on this topic as well, that is secondary data, including the major sources of secondary data,
including your journals, then monographs, government publications, and so many other published literature, you can say, and then research problem statements. So this is what is on cards for today's discussions. So let us begin with our topic now. Before starting, we'll just take a simple glance over the outline of today's lecture. So these four topics in this particular order, I will try to cover in today's session. So we will start our discussions from this particular topic, primary versus secondary data. Then we will be switching over our discussions onto the major sources of secondary data. Then the questionnaire versus schedule. These are two types of documents that we are going to have discussions on. And immediate after that, we'll be having discussions on steps in designing a questionnaire. So this is in specific sense what is lined up for today's discussions. So यहाँ से आगे जाने से पहले जैसे मैम ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि I must deliver my talk using a combination of two languages, Hindi and English. So I will try to take utmost care because understanding part is more important, I believe. यहाँ से आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे दो सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के साथ. पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, इट मस्ट बी ए मिक्स बैग. आप 50 पार्टिसिपेंट्स है तो आप में कोई सोशल साइंसेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट के या इंटरडिसिप्लिनरी के रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, या कोई इंजीनियरिंग या मेडिसिन, फार्मेसी, या कोई ह्यूमैनिटीज़ या फिर लिटरेचर. ऐसा जनरली एक मिक्स बैग रहता है पार्टिसिपेंट्स का. तो हम पूरे 50 का एक शायद कॉमन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को ये समझ के एग्ज़ाम लिखनी है. यू आर सपोज टू अपीयर फॉर एन एग्ज़ाम आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स. तो उस वक्त ऑब्वियसली आपको करिकुलम दिया गया है तो इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा. सो माय फर्स्ट पर्पस विल बी to make you comfortable regarding the understanding of this particular topic, कि आपको ये समझ में आ जाए जो मैं बोल रहा हूँ और आपको थोड़ा कंफर्टेबल बना दूँ सो दैट आप लोग एग्ज़ाम लिख सके जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ. और दूसरा एक पर्पस जो ऑब्वियस है वो है ये है कि ये टॉपिक जो है इंसिडेंटली पूरा का पूरा यूनिट 3 जो मैं डील कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा यूनिट 3 जो है इट हैज़ गॉट स्लाइट ओरिएंटेशन टूवर्ड्स सोशल साइंसेस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. सो इसके जो अप्लीकेशंस है, ये जो टॉपिक्स है, ये सोशल साइंसेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट के जो रिसर्च स्कॉलर्स है इनके लिए ज़्यादा रिलीवेंट लगते हैं. तो ऑब्वियसली आप 50 में ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स तो होंगे ही जो सोशल साइंसेस के हैज़ बीन 14 डिसिप्लिन्स आर देयर आई बिलीव, जिसमें आपका फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और बहुत सारे से. और कॉमर्स, मैनेजमेंट और इंटरडिसिप्लिनरी में जैसे होम साइंस हो गया या न्यूट्रिशन, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, लाइब्रेरी साइंस, ये सब डिसिप्लिन्स आते हैं उसमें. तो इन सब रिसर्च स्कॉलर्स को ये सब टॉपिक ज़्यादा रिलीवेंट है. तो मेरा दूसरा पर्पस ये रहेगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी वजह से आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर देता हूँ क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए, तो वो एक कोशिश ज़रूर रहेगी मेरी कि आपको थोड़ी दिशा अगर दिखा सकूँ मैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अगर कुछ वैल्यू एडिशन मेरी तरफ से हो जाए तो वो डेफिनेटली मेरे दिमाग में है. तो with these two purposes in mind, now we are getting into actual discussions. So we'll start our discussions with the first section. And in first section, we are going to have discussions on primary versus secondary data. And you must be familiar with, just a moment. Well, so you must be familiar with this particular terminologies. There are two types of data, primary versus secondary. As such, data can be classified in several ways. Like one configuration, as you can see on your screen, data can be classified as primary और सेकेंडरी डेटा. और आपके सिलेबस में जो लिखा है वो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा ऐसा स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तो मुझे ये डील करना ही है. पर जो अदर कॉन्फ़िगरेशंस है आपके डेटा के, जिसमें हम लोग क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा ये उल्लेख भी करते हैं
बाद में कंटिन्यूअस डेटा या फिर डिस्क्रीट डेटा, ऐसी भी टर्मिनोलॉजीज एग्जिस्ट करती है। पर हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है अभी वो है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं डेटा से। व्हाट इज बेसिकली डेटा? डेटा, these are simply the facts and figures or recorded measures. You typically generate some data, you typically gather some data while conducting your research study. And data are definitely are obviously nothing but the the facts and figures that you simply gather by resorting to either experimentation or you might be conducting some sort of surveys. तो सर्वे कंडक्ट करके या फिर एक्सपेरिमेंट से जो डेटा हम लोग जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स या फिर रेस्पॉन्सेस या टिक मार्क के फॉर्म में जो हमारे पास आता है, उसी को हम लोग शायद डेटा कहते हैं। एंड वन peculiarity about data is typically available in raw form. Data is generally available in unprocessed form. It is available in crude form, and as a researcher we need to process this particular data. देखिए, दो टर्मिनोलॉजीज है। These are few examples of data. So data might be available in terms of the numerical numbers. The absolute numbers you can take it as some sort of readings like साइंस इंजीनियरिंग में टेम्परेचर हो गया, वेट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब नंबर में रिफ्लेक्ट होते हैं। वेट हो गया, ये सब नंबर में रिफ्लेक्ट होते हैं। सोशल साइंसेस में इनकम के बारे में बात हो सकती है, या फिर स्ट्रेस लेवल की बात होती है, या फिर आईक्यू का क्वेश्चन हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो these are in terms of numbers, you can say. Then these may be available in terms of ratings or rankings. This is considered as your rank order data, or it may be your simple descriptive narrations in the form of text or running paragraphs, you can say. Or these may be in the form of your responses to open-ended questions like tick mark A B C D. ऊपर एक question लिखा हुआ है and then you have got choices A B C D, and you are asking respondent to tick mark these choices. So it may be available in the form of this tick marks, or this may be in the form of quotations, or this may be in the form of your field notes that you typically maintain while conducting your research study. So these are few examples of data. Now we are getting on to the next terminology. There are two concepts. The first term is data, and second term is your information. So data we generally generate while conducting our research study, and you know very well कि data का importance क्या है research में. Rather, your entire research revolves around data. Okay, so data is generally available in a raw form. It is available in unprocessed form, and as against this, information is available more in processed form. It is available more in processed form. So what does this mean? You are in between these two, you have got analysis. हम लोग डेटा का एनालिसिस करते हैं, इसका मतलब क्या है? The data that we have gathered, we generally put it into softwares, and software will process this data and provide us some more meaningful information in the form of findings or results, you can say. So data are typically available in processed form, and as a research scholar, it is your responsibility to transform this raw data into meaningful information. These are in the form of findings, you can say. So as a research scholar, research करना है यानी क्या? तो obviously raw data को हम लोग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि फाइंडिंग्स जो है ये हमारे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिसको हम लोग स्टेक होल्डर्स कहते हैं। स्टेक होल्डर्स यानी क्या? आप जब प्रपोजल बनाते हो आपका, जिसको हम लोग सिनॉप्सिस कहते हैं, तो उसमें हम लोग एक चीज लिखते हैं, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर रिसर्च स्टडी, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ आवर रिसर्च स्टडी।
And while writing this, we are actually addressing the issue of who and how. What does this mean? कि हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स जो है वो किसको काम में आएगी और किस तरीके से उनको काम में आएगी. सो एक्चुअली वी आर जस्टिफाइंग द सिलेक्शन ऑफ आवर टॉपिक. वी आर जस्टिफाइंग द सिलेक्शन ऑफ अवर रिसर्च टॉपिक. कि जैसे एक क्वेश्चन आता है कि आपने इसी टॉपिक पे रिसर्च करने की क्यों सोची है, फिर आपने यही टॉपिक क्यों चूज किया है. So that is called as your rationale of the study or justification of study. And while addressing this particular issue, we typically try to answer these two questions. Who will get benefited by your research study and how will they get benefited? So basically this information is nothing but the findings, and these findings are more relevant to your stakeholders, you can say. So as a research scholar, what do? We collect data, we process it, and we transform it into some meaningful interpretations in the form of findings. So these are the two terms that we have got exposed ourselves to in the last 5 minutes. Now we'll proceed. So this is one of the configurations that I was telling you, types of data, primary and secondary data. Now about primary data. ओके, आपको अगर बीच में अनम्यूट करके कुछ कंट्रीब्यूट करना है या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं, बट आई जनरली like to handle queries towards the end of the session. But anyways, you can interrupt me. Well, we're talking about primary data. Primary data is considered as your first-hand data. It is considered as your first-hand data. What does this mean? This data is original data. Now, we'll try to discuss this. प्राइमरी डेटा इज फर्स्ट हैंड डेटा. फर्स्ट हैंड का मतलब है कि ये डेटा कहीं पे अवेलेबल नहीं है. ये डेटा एज ए रिसर्च स्कॉलर आपने खुद ने जनरेट किया हुआ है. आई एम यूजिंग द वर्ड जनरेट क्योंकि ये डेटा अस्तित्व में नहीं था. एज ए रिसर्च स्कॉलर आप जब आपका स्टडी पे काम कर रहे थे, रिसर्च स्टडी पे काम कर रहे थे, उस वक्त आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट किए हैं, दैट डेटा इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल इन नेचर. It is original in nature because it has got generated for the first time, and that is why it is original in nature. The third one is who collects this data. This data is collected by the research scholar. आपने खुद ने आपकी रिसर्च स्टडी को ध्यान में रखते हुए जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है, उस डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. आप आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स की डेटा रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, डेटा रिक्वायरमेंट यानी क्या, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस को ध्यान में रखते हुए जो डेटा खुद जनरेट कर रहे हैं, उस डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं. और ये जो डेटा है, ये हमारी स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स के लिए गैदर किया हुआ है. स्पेसिफिक रिसर्च नीड यानी आपके टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स और आपके हाइपोथेसिस को ध्यान में रखते हुए, और आपका ऑब्वियसली टाइटल का पार्ट, इसको ध्यान में रखते हुए जो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है, उस डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं. और प्राइमरी डेटा इज जनरली अवेलेबल इन रॉ फॉर्म. ये डेटा रॉ फॉर्म में अवेलेबल होता है, मींस इट इज अवेलेबल इन क्रूड सेंस, यू कैन से. नाउ एज अगेंस्ट इट वी टॉक अबाउट सेकेंडरी डेटा. योगराज सर प्लीज थोड़ा म्यूट करेंगे आप. Then we are talking about secondary data. In the same slide, we'll be having a contrast. So as I told you, primary data is considered as first-hand data. Secondary data, one-line definition is it is readily available data. It is readily available data. ये डेटा कहीं ना कहीं अस्तित्व में है, कहीं ना कहीं पे अवेलेबल है. ओके, और अवेलेबल, ये थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा. इट इज रेडिली अवेलेबल डेटा यानी क्या, ये डेटा जब आप इंटरनेट से कोई डेटा आप रेफर करते हो और उसको डाउनलोड करके आप साइटेशंस देते हो, तो वो जो डेटा रहेगा वो सेकेंडरी डेटा रहेगा.
तो ये रेडीली अवेलेबल डेटा है, ये कहीं जर्नल में अवेलेबल है, मैगजीन्स में है, न्यूज़पेपर्स में है, या फिर कोई एजुकेशनल सीडीज हो सकती है, या फिर कोई एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, या इंटरनेट की कोई साइट्स हो सकती है, बुक्स में हो सकता है, ये जो आप रेफर कर रहे हो। लेट मी, ये जो डेटा है सेकेंडरी डेटा को, इसको हम लोग सर्च करते हैं, हम लोग इसको रिट्राइव करते हैं, और इसको हम लोग रेफर करते हैं, और प्राइमरी डेटा को हम लोग गैदर करते हैं। ये एक और फर्क है। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं तो फिर प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप कोई एक्सपेरिमेंटेशन प्लान कर रहे हैं, लेबोरेटरी में हो या फिर फील्ड पे हो, तो उस वक्त जो डेटा जनरेट होगा वो डेटा हमको गैदर करना होगा, और वो डेटा प्राइमरी डेटा होगा। पर ये सेकेंडरी डेटा जो है ये हमको ढूंढना होता है, रिट्राइव करना होता है। रिट्राइव यानी डाउनलोड, और उसके बाद रेफर का मतलब है साइटेशंस देना। तो सेकेंडरी डेटा का ये जनरली, सेकेंडरी डेटा जनरली प्रोवाइड्स यू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर रिसर्च स्टडी, यानी आपके रिसर्च की शुरुआत ही सेकेंडरी डेटा से होती है। जब आप टॉपिक सिलेक्ट करते हो तो आपने किसी न किसी रिसर्च के आर्टिकल्स को या थेसिस को रेफर तो किया होगा, पढ़ा होगा, आइडिया ली होगी कि उन लोगों ने कैसे काम किया है। तो एक्चुअली वी आर रेफरिंग टू सेकेंडरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा जो लिटरेचर रिव्यू हम लोग करते हैं, लिटरेचर रिव्यू का फुल फ्लेजेड चैप्टर हम लोग लिखते हैं हमारे थीसिस में, चैप्टर नंबर 2 जनरली होता है लिटरेचर रिव्यू का। तो लिटरेचर रिव्यू करते वक्त जो डेटा हम लोग रेफर कर रहे हैं वही हमारा सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं लिटरेचर रिव्यू में, जो प्रीवियसली पब्लिश्ड लिटरेचर है आपके टॉपिक से मिलता जुलता, उसको आप सर्च कर रहे हो, उसको आप रिट्राइव कर रहे हो, और उसको आप रेफर कर रहे हो। So typically it provides starting point, and just to take the discussions a step ahead, मैं तो ये बोलूंगा कि LR comes handy at each stage of your research journey। यानी आपको इफ सपोज सिनॉप्सिस लिखना है तो भी आप 10 लोगों की सिनॉप्सिस देखोगे, उसके लिए शोध गंगोत्री नाम से साइट आती है। आई एम नॉट श्योर कि आपको ये मालूम है कि नहीं, पर शोध गंगोत्री नाम से इनफ्लिबनेट की साइट है। इस साइट पे ये सिनॉप्सिस की रिपोजिटरी है, और यहाँ से आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो आपके डिसिप्लिन के सिनॉप्सिस, उसको रेफर कर रहे हो और अपना बना रहे हो। तो एक्चुअली यू आर डूइंग LR। तो इस स्टेज यानी मैं टॉपिक सिलेक्शन से लेके आपका थीसिस राइटिंग का जो आखिरी पार्ट होता है रिपोर्ट प्रिपरेशन का या रिपोर्ट राइटिंग का, ये इस 2 स्टेप के बीच में जितने भी स्टेप्स आती है उस पर ही, उन सभी स्टेप्स पे LR कम्स हैंडी, लिटरेचर रिव्यू कम्स हैंडी। उसके बाद ये डेटा कौन कलेक्ट करता है? तो ऑब्वियसली ये रिसर्च स्कॉलर कलेक्ट नहीं करता है, रिसर्च स्कॉलर तो सिर्फ इसको रेफर करता है। इसमें ये डेटा कलेक्ट कौन करता है? तो ये दूसरा कोई है। दूसरा कोई का मतलब है ये दूसरा कोई रिसर्च स्कॉलर होगा, या कोई दूसरी एजेंसी होगी गवर्नमेंट की या प्राइवेट बॉडी हो सकती है, या फिर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अलग अलग NSSO इज देयर विच कलेक्ट्स डेटा एट ए वेरी लार्ज स्केल। सो ये कोई बॉडीज हो सकती है जो ये डेटा कलेक्ट कर रही है, रिसर्च स्कॉलर ये डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा है। यानी सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड by individual research scholars, or these may be the research agency, institutes, department, or some government bodies, you can say. And one peculiar difference or contrast between primary and secondary data is this data is processed data. This data is processed data. Process का मतलब क्या है? इस डेटा का एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है, means secondary data has already undergone some sort of statistical analysis, and now it is available in the form of findings, or it is, it is available for your ready reference. And most of the time we generally refer to secondary data. Okay, so this is the contrast between primary and secondary data. So we will move ahead now. So I hope you might have got a clear understanding regarding this configuration, what is primary and what is secondary. So secondary data, just so secondary data is more about, आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हो तो वो जो डेटा आप रेफर करते हो दैट डेटा इज कंसिडर्ड एज your secondary data, and primary data, the data which is collected by research scholar.
after taking into consideration by his or her own research needs, that data is considered as primary data. Okay, now about LR. LR is such a crucial activity, boss. You just simply can't believe ki how LR activity comes handy at several stage and how it can work as a mentor for you in the absence of a physical mentor. कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, समझ भी नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे लिखूं या कैसे रिसर्च करूं, तो मुझे लगता है लिटरेचर रिव्यू की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली। और एक इंसिडेंटली ऐसा देखा गया है, मेरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं, कि रिसर्च स्कॉलर्स जनरली एलआर एक्टिविटी को बहुत लाइटली लेते हैं। उसमें क्या करना है, वो दूसरे का रेफर करना है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। इट इज नॉट लाइक दैट। एलआर इज नॉट अबाउट लिस्टिंग आउट द प्रीवियस स्टडीज इन अ रैंडम ऑर्डर। डेफिनेटली एलआर इज नॉट सो। एलआर हम लोगों को एनलाइटन करने के लिए होता है। एनलाइटन यानी क्या, आप अगर कहीं पे आके रुके, इफ सपोज सिंपल सा एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इफ यू डोंट नो हाउ टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, एंड दिस इज द पिक्यूलियर प्रॉब्लम। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को अभी भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कैसे करते हैं ये नहीं मालूम, और उसका एक स्वाभाविक कारण ये है कि ये किसी किताब में लिखा ही नहीं है कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कैसे करते। किताबों में क्या लिखा हुआ है, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन लिखी है, हाइपोथेसिस के टाइप्स लिखे हैं, या फिर उसकी कुछ गाइडलाइंस लिखी होगी हाइपोथेसिस को लेके कि नल हाइपोथेसिस को H0 कहते हैं और अल्टरनेट को H1। पर उससे हमारी तकलीफें सॉल्व नहीं हो रही ना। अगर आज आपको कोई एक टॉपिक दिया गया और आपको बोला जाए कि आप इसके ऊपर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करिए, तो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को ये चीज नहीं आती है आज भी कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। और हाइपोथेसिस दीज आर बेसिकली assumptions और सपोजिशन दैट नीड्स टू बी टेस्टेड। ये आपने तो पिछले 2 दिन में अनगिनत बार सुन लिया होगा, पर ये डेफिनेशन से ये पता चलता है कि बनाते कैसे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम। यानी क्या जो किताबों में अवेलेबल है वो पढ़ के एग्जाम देना, दैट इज ओके, पर वो पढ़ के हमारे रिसर्च स्टडी को आगे लेके जाना इज ऑल द मोर डिफिकल्ट, आई बिलीव। तो आपको अगर आपके रिसर्च टॉपिक को लेके हाइपोथेसिस बनाने हैं और इसको लेके आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है कि जैसे हाइपोथेसिस कितने बनाने हैं, ये मुझे बार बार एक क्वेश्चन आता है। प्रीति मैडम ने मेरे इंट्रोडक्शन में बोला है कि मैंने 500 वर्कशॉप्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हैं, मैं उसमें एडिशन करना चाहता हूँ, ये 1000 के ऊपर हो चुके हैं ऑलरेडी। और मुझे जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आते हैं वो एक होता है कि हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, पर मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ सेकेंडरी डेटा की जो हमारी डिस्कशन चल रहा है। तो एक तो मुझे क्वेश्चन आते हैं कि सर कितने हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, ऐसा कोई रूल है क्या। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं, यानी ड्राफ्ट कैसे रहेगा, ये स्टेटमेंट्स है, उसके कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं क्या, यदि इसको लिखते कैसे, यानी प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसका। तो आप प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, आप देखिए 4 लोगों के, आप अभी 50 है, आपने आपके पहचान के कोई होंगे जिन्होंने पीएचडी किया, उनके सिनॉप्सिस निकाल लीजिए किसी भी 4 लोगों के, तो आपको दिखेगा 4 लोगों ने हाइपोथेसिस को 4 अलग तरीके से प्रेजेंट किया होगा। कोई ऐसे बुलेट पॉइंट यूज करता है, देखिए, और फिर हाइपोथेसिस प्रेजेंट करता है। कोई 1 2 3 लिखता है और उसको प्रेजेंट करता है। कोई ये H0 H1 H2 ऐसा लिखता है और प्रेजेंट करता है। कोई हाइपोथेसिस 1 पूरा लिखेगा वो, हाइपोथेसिस 1 फिर 2, कोई लिखता है ये H1 ऐसा, अभी इस बार सफिक्स नहीं दिया है, H2 H3 ऐसे कुछ कलाकारी दिखेगी, यानी चीज एक ही है पर प्रेजेंटेशन के तरीके ऐसे होंगे, और आप ये 5 में से किसी एक तो आपने यूज किया होगा फॉर श्योर। फिर बात ये होती है कि इसमें से सही तरीका कौन सा है, जिसको साइंटिफिक राइटिंग कहती है। आपने मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग का लेक्चर शायद सुना होगा, उसमें शायद कवर होगी भी ये चीज। पर साइंटिफिक राइटिंग नाम से एक पूरा फुल फ्लेजेड डिसिप्लिन है रिसर्च में, उसमें इसके रिटर्न रूल्स है कि ये चीजें प्रेजेंट कैसे करते हैं। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये 700 पेजेस की कोई किताब है, उसमें हाइपोथेसिस कैसे बनाते और लिखते ये लिखा हुआ है। तो उसके लिए फिर एलआर कम्स हैंडी, दिस इज व्हाट आई मीन टू से। आपको अगर ये जानना है कि कितने हाइपोथेसिस बनाने होते तो कैसे पता चलेगा, आप लिटरेचर रिव्यू कर लीजिए, उसमें से चेक कर लीजिए कि आप अभी सपोज 25 एलआर कर रहे हैं, 25 लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो आपके पास
25 रिसर्च स्कॉलर्स ने कितने हाइपोथेसिस बनाए, ये इंफॉर्मेशन है। उसका एक रेंज निकाल लीजिए कि आपके फील्ड में लगभग एक 7 से 15 हाइपोथेसिस बनते हैं। आप इसके बीच में पकड़ लीजिए तो लगभग ये 10-11 हाइपोथेसिस बनते हैं। तो आप 10 या 11 बना लेंगे। यानी क्या, इंस्टेड ऑफ बीइंग एंटायरली क्लूलेस, आपको कुछ अंदाजा आना तो शुरू हो जाता है कि हमारे में फील्ड में क्या चलता है। और एक मुझे बार बार आता है कि जैसे सर सैंपल साइज कितना ले, तो लोग अपने मन से कुछ तो भी 400, 500, 200, कोई 250 ले लेता है। अभी ये आया कहाँ से इसका कोई जवाब नहीं होता। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा ही बाद में, सैम्पलिंग के ऊपर। और ऐसे अनगिनत चीज है कि रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन। अभी कल ही मेरा एक वर्कशॉप चल रहा था, उसमें एक लड़की ने पूछा मुझे कि न्यूट्रिशन की थी वो, उसमें मैं रिसर्च डिजाइन के हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ा रहा था। तो कल मैं प्री पोस्ट टेस्टिंग पढ़ा रहा था उनको, जिसको पेयर टी टेस्ट कहते हैं। पेयर टी टेस्ट, प्री पोस्ट टेस्टिंग। और कल ही मैंने ये एक टेस्ट की और दूसरी टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स, ये 2 टेस्ट मैंने पढ़ा है। अभी उसका मुझे सवाल था कि सर ये प्रीपोज करना है और टी टेस्ट में हम लोगों ने टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स, और इसमें कंट्रोल वेरिएबल और आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, ये डिजाइन था। अभी ये 2 रिसर्च डिजाइन है। अभी उसका सवाल ये था कि ये दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए। तो इसका जवाब कहाँ से आएगा। इफ सपोज उसका कोई न्यूट्रिशन था, एक न्यूट्रिएंट था रहता, एक न्यूट्रिएंट इफेक्टिव है क्या, ये उसको चेक करना था। तो वो चेक करने के लिए ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ये दोनों डिजाइन उसको अप्लीकेबल है। अभी सवाल ये उठता है कि दोनों में से कौन सा यूज करना है। तो ऑब्वियसली इसका जवाब है एलआर। आप अच्छी तगड़ी क्वालिटी का लिटरेचर रिव्यू करिए, और आपने सपोज 100 लिटरेचर रिव्यू किए हैं और आपको पता है कि अगर प्री पोस्ट में 80 लोगों ने ये किया है और 20 लोगों ने ये किया है, जवाब आपके पास है कि आपने कौन सा करना चाहिए। मेजोरिटी जो कर रहे हैं वो करना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ने किया तो कुछ तो सेंस होगा इसमें। यानी क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एलआर जो है ये इतनी तगड़ी लेवल की एक्टिविटी है कि आपके पास कोई गाइड नहीं है कि जिसको आप बिल्कुल ऑथोरिटी के साथ पूछ सके कि सर बता दो ना। तो और इतना प्यार से कोई बताएगा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं। तो मुझे लगता है लिटरेचर रिव्यू ये एक आपका पर्पस सॉल्व कर देगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ये जो 2 सवाल है, ये शायद लिटरेचर रिव्यू से मैक्सिमम हद तक तो हो जाते हैं। और मैं भी कोई कोर स्टैटिस्टिशियन तो हूँ नहीं, ना ही मैंने बीएससी स्टैटिस्टिक्स किया है, ना ही एमएससी स्टैटिस्टिक्स किया है, पर वर्कशॉप तो ले रहा हूँ, 1000 के ऊपर हो गए। तो मुझे मेंटरिंग कहाँ से आई, तो ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू से ही ये सब, और रियल लाइफ प्रोजेक्ट करके ये थोड़ा सा इंसाइट्स आ जाते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू जो है ना, इट कम्स हैंडी। तो जिस दिन आपके मन में आएगा कि पीएचडी करना है, मैं बोलता हूँ कि उसी दिन से आप लिटरेचर रिव्यू करना शुरू कर दीजिए, और कम से कम 1 साल तक आप लिटरेचर रिव्यू करिए। मैं अपनी नागपुर यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल साइट कर रहा हूँ, रियल लाइफ केस है। मैं ऐसे ही नागपुर यूनिवर्सिटी में, जब कोविड से पहले की बात है, फिजिकल क्लासेस हुआ करते थे हमारे एनएचआरडीसी में। वहाँ पे मैं प्री पीएचडी का ही कोर्स वर्क ले रहा था। तो शाम को मुझे एक पार्टिसिपेंट का फोन आया और उसने मुझे बोला कि सर आपसे मिलना है, कुछ डिस्कस करना है मेरे प्रोजेक्ट के बारे में। तो कब आओ, मैंने उसको अपॉइंटमेंट दी और अच्छे खासे डिस्कशन हुए। और उसने मुझे क्या पूछा होगा, तो ये तगड़े लेवल का कोई स्टैटिस्टिक्स था, मैनोवा को वगैरह लेके, और पोस्ट डॉक टेस्टिंग, वो सब मैंने उसकी तो क्वेरी सेटिस्फाई कर दी। और फिर मैंने उनको पूछा कि मैम आप सबमिशन कब प्लान कर रहे हैं। तो उसने जवाब क्या दिया मुझे, वो पुणे की थी वो लड़की। वो उसने मुझे जवाब दिया कि सर पिछले 2 साल से इस टॉपिक पे मैं काम कर रही हूँ और चेक कर रही हूँ कि इसकी फिजिबिलिटी कैसी है, कि मुझे ये सब ठीक से जम पाएगा, कि जो टेस्ट में प्लान कर रही हूँ वो फिजिबल रहेगी क्या, और थोड़े कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैंने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। सो एज यू कैन सी, ये नई जनरेशन जो है ना, वो चीज़ें प्लान कर रहे हैं। और ये प्लान किए हुए रिसर्च जो है ना, उसकी रिसर्च वैल्यू बहुत तगड़ी होती है। अदरवाइज चर्चा तो हमेशा ये होती है कि ये पीएचडी अवार्ड होने के बाद वो थीसिस का करना क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। गेटिंग मी। तो उसमें अगर कुछ मीनिंग पुट करना है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इनिशियल स्टेजेस में अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं, और मुझे तो लगता है कि पीएचडी करने से कम 4 रिसर्च आर्टिकल्स आपके अच्छी क्वालिटी जर्नल्स में अगर पब्लिश हो जाते हैं, तो पीएचडी करने की प्रोसेस जो है वो एंजॉयफुल हो जाती है। ओके, सो वी विल गेट बैक टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एलआर आई वाज टेलिंग यू। सो इट इज मोर अबाउट सेकेंडरी डेटा। सो मैंने जैसे बताया कि एलआर से आपको इंसाइट्स मिल जाते हैं, ये एक पहली चीज। और दूसरी, एलआर से जो होता है वो होता है आपकी रिसर्च गैप्स।
you will be able to identify the research gaps. Research gap का मतलब है कि to what extent your topic is been explored. You will get idea कि to what extent your topic is been explored. Getting me? So आपको पता चलता है कि आपके रिसर्च टॉपिक को लेके या आपका रिसर्च टॉपिक जो आपके मन में चल रहा है उसको लेके ये एस्पेक्ट कवर हो चुका है, ये कवर हो चुका है, ये आपको ये एलआर से पता चल गया कि इसके जो फाइनल एलिमेंट्स है इस टॉपिक के वो कितनी हद तक एक्सप्लोर हुए हैं, और इसके बीच में जो चीजें हैं ये इसको हम लोग कहते हैं रिसर्च गैप्स, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं है. दीज आर द अनएक्सप्लोर्ड एलिमेंट्स, अनएक्सप्लोर्ड इश्यूज इन योर टॉपिक. और ये रिसर्च गैप्स को ध्यान में रखते हुए आप अगर आपका रिसर्च प्लान करते हो तो आपके रिसर्च की पब्लिकेशन वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है. इस रिसर्च गैप को लेके अगर आप रिसर्च आर्टिकल आप डेवलप करोगे तो वो अच्छी खासी क्वालिटी जर्नल में, क्वालिटी का मतलब हमारे इंडिया के सेंस में यूजीसी केयर लिस्ट जो आपको सबको मालूम होगी. हमारा एक सपना होता है कि कम से कम कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में तो भी चला जाए पेपर, और उससे भी बड़ी चीज जो है वो स्कोपस आपको मालूम होगा शायद, या फिर WOS, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ आपको. वेब ऑफ साइंस हो या फिर विले हो, स्प्रिंजर हो, एमराल्ड हो या फिर एल्सवेयर हो. हमारा सपना होना चाहिए कि हमारा पेपर यहाँ पे जाना चाहिए. और उससे भी बड़ी बात, हमारे यहाँ इंडिया में जैसे यूजीसी केयर लिस्ट है वैसे इंटरनेशनल लेवल पे ABDC लिस्ट है. इसमें 4 कैटेगरी के जर्नल है. अभी स्कोपस में लगभग 44,000 जर्नल्स है, 44,000. और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मुझे नागपुर की एक बहुत ही सीनियर फैकल्टी, उन्होंने मुझे नागपुर का डेटा बताया है कि स्कोपस में नागपुर यूनिवर्सिटी से कुछ हजार के आसपास ही पेपर्स पब्लिश हुए हैं. इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के इतने सब प्राध्यापक मिलके, और जर्नल है 44,000. ये में और इतने सालों का अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखते तो अभी तक सिर्फ नागपुर यूनिवर्सिटी से 1000 स्कोपस जर्नल में पेपर्स पब्लिश हुए हैं, और इट इज अ इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी. और इसमें जो है ABDC जो मैं बोल रहा था, इसमें सिर्फ लगभग 4000 जर्नल्स हैं, सिर्फ 4000. आप देख सकते हैं यहाँ पे 44,000 है, यहाँ पे जाना मुश्किल हो रहा है. हम लोग तो बात कर रहे हैं ABDC, ये सबसे बेस्ट जर्नल की कैटेगरी. इसमें जैसे यूजीसी केयर लिस्ट में ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है, इसमें 4 कैटेगरीज हैं, A A B और C. तो हाल ही में मैंने इसमें सबमिट किया है पेपर, अभी देखते हैं शायद अभी एक्सेप्टेंस आ गया है. लेट अस चेक कि क्या होता है कल. तो आप अगर ये रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करके पेपर पे काम करते हो तो फिर ऑब्वियसली आपकी पब्लिकेशन वैल्यू जो है, पब्लिकेशन वैल्यू यानी अच्छी क्वालिटी के जो जर्नल मैंने आपको बताया, यहाँ पे पेपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और यहाँ पे इसीलिए एलआर जो है इट इज वेरी वेरी important activity, and you can't undermine the importance of LR activity. We'll get back to our discussions now. So अभी तक जो हमने डिस्कशंस की है प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा को लेके, उसका एक समरी ले लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, प्राइमरी डेटा इज योर फर्स्ट हैंड डेटा, इट इज गैदर्ड एंड असेंबल्ड स्पेसिफिकली फॉर द प्रोजेक्ट रिसर्च रिपोर्ट एट हैंड. हमारी रिसर्च टॉपिक को ध्यान में रखते हुए जो डेटा हमने खुद कलेक्ट किया हुआ है उस डेटा को प्राइमरी डेटा कहते हैं. सेकेंडरी डेटा ये रेडीली अवेलेबल डेटा है, कहीं ना कहीं ये अवेलेबल है पब्लिश फॉर्म में, और ये डेटा किसी और एजेंसीज ने या रिसर्च स्कॉलर्स ने कलेक्ट किया हुआ है, और वो उनकी रिसर्च नीड्स को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट किया गया है. आपके रिसर्च प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये डेटा कलेक्ट नहीं किया गया है, और ये डेटा का एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका है. और जैसे मैंने आपको बताया ये पॉइंटर कि LR प्रोवाइड्स अ स्टार्टिंग पॉइंट टू योर रिसर्च स्टडी. So this is the summary of what we have discussed. Okay, so we'll proceed now. देखिए, ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेजेस में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा ऐसा कॉन्टेक्स्ट ना होते हुए वो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या है, जैसे लिटरेचर रिव्यू के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो जो वांग्मय जिसको कहते हैं, वो जो वांग्मय अवेलेबल है किसी कथाकार हो या फिर किसी लेखक हो या कवि कवियत्री हो, उनका कोई लिटरेचर वो सिलेक्ट करते हैं और उस लिटरेचर पे वो रिसर्च करते हैं. अभी इफ सपोज हम लोग दासबोध
दासबोध आपने सिलेक्ट किया कि दासबोध के ऊपर आपको कुछ रिसर्च करना है, तो ओरिजिनल दासबोध जो अवेलेबल है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर प्राइमरी सोर्स। और दासबोध के ऊपर इफ सपोज कोई काम हुआ है ऑलरेडी एंड विच इज ऑलरेडी पब्लिश्ड, दासबोध के ऊपर किसी रिसर्च स्कॉलर्स ने या किसी और ऑथर ने कुछ काम किया हुआ है और उसको भी आप रेफर कर रहे हो, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज योर सेकेंडरी सोर्स। तो यहाँ पे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा ऐसा रेफरेंस ना आते हुए, खास करके मैं लिटरेचर या फिर भाषा में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो लोग कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड सेक्शन में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस क्या हैं और लिटरेचर रिव्यू करते कैसे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ सोर्सेस मैं बता रहा हूँ और फिर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ कि ये करते कैसे हैं। मैं अभी देखिए, इसमें दो प्रकार के सोर्सेस होते हैं आपके लिटरेचर के जो सोर्सेस हैं के दो हिस्सों में मेजरली, हाँ, दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस और दूसरे है नॉन इलेक्ट्रॉनिक। नॉन इलेक्ट्रॉनिक में क्या आएगा, जब आप किसी लाइब्रेरी को खुद जाके विजिट कर रहे हो, आपकी कॉलेज लाइब्रेरी हो या सेंट्रल लाइब्रेरी हो या यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी हो या आपकी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हो, आप लाइब्रेरी में विजिट कर रहे हो और वहाँ पे जो जर्नल सब्सक्राइब किए हुए हैं वो, या फिर वहाँ पे जो रेफरेंस बुक्स है वो आप रेफर करके कुछ जॉटिंग्स ले रहे हो, तो इसको हम लोग एक्चुअली नॉन इलेक्ट्रॉनिक सोर्स कहते हैं। या फिर आप कुछ मैगजीन्स को रेफर कर रहे हो, न्यूज़पेपर को रेफर कर रहे हो और कुछ जॉटिंग्स ले रहे हो। सो दिस इज मोर अबाउट जॉटिंग by physically going through the articles and visiting the knowledge resource centers. तो दिस इज नॉन इलेक्ट्रॉनिक सोर्स। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सोर्स। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स का मतलब है इट इज यू आर सर्चिंग द अवेलेबल लिटरेचर यूजिंग द इंटरनेट। आप इलेक्ट्रॉनिकली जब लिटरेचर सर्च कर रहे हो तो उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्च कहेंगे, और खास करके यहाँ पे इंटरनेट का आप यूसेज कर रहे हो। तो इसमें से आज की जो सिचुएशन है, मैं कोविड की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा सा फिजिबल नहीं माना जाता है कि आप कितनी लाइब्रेरीज को विजिट करोगे ना। आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी ठीक है, पर उसकी भी अपने कुछ लिमिटेशंस होंगे, तो आप ऐसे कितनी लाइब्रेरी में ढूंढोगे ना। तो आज ये सोर्स जो है ये ठीक है, यूज तो करना चाहिए, बट यू कांट सिंपली रिलाई ऑन दिस सोर्सेज टुडे। यू नीड टू रिसोर्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सर्च। और इसके ऑब्वियस एडवांटेजेस ये हैं कि हर एक फिजिकल लाइब्रेरी का अपना एक कंस्ट्रेंट होता है कि उनका जो डेटा बैंक अवेलेबल है उनके पास, या बुक बैंक जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो रिपॉजिटरी उनके पास अवेलेबल है वो शायद सीमित हो सकती है। तो आपको एडिशनल सोर्सेज के लिए कुछ और लाइब्रेरीज को विजिट करना होगा, एंड विच इज सपोज टू बी अ वेरी कम्बरसम जॉब। तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट एज अगेंस्ट दिस इंटरनेट पे रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। और उसका मैं अभी जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दे ही रहा हूँ कि ये पूरा सागर है नॉलेज का। इसमें से आपको यू जस्ट डाइव डीप इनटू इट एंड वॉट एवर यू विश टू व्हाट वी कैन से रिट्राइव फ्रॉम इट यू कैन डू इट। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे ही रहा हूँ अभी। पर बेसिकली हम लोगों ने आज इलेक्ट्रॉनिक सर्च करना चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्च की स्ट्रेटेजी होती है, जिसको सर्च स्ट्रेटेजी, ये टर्मिनोलॉजी ही है। And many of the research scholars I found that they are not pretty familiar with regarding this कि सर्च स्ट्रेटेजी होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटाबेसेस एंड रिपोजिटरीज एज वेल। ये आज भी बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को मालूम नहीं है। और दूसरी चीज, हाउ टू एक्सेस इट, हाउ टू एक्सेस इट यानी लॉगिन वगैरह कहाँ से लेना है इसका, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू यूज इट। ये कुछ सवाल है कि जो मुझे लगता है मैंने एड्रेस करने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है ये, और बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को ये चीज आज भी नहीं मालूम है। ये बात नहीं कि हम लोग करना नहीं चाहते, हमको मालूम नहीं इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो ये तो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्रोग्राम है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ कि
जहाँ से थोड़ा सा इसका अवेयरनेस हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस कौन से हैं वो बता देता हूँ आपको, जो आप घर में बैठ के ब्राउजिंग कर सकते हो। कुछ वेबसाइट की लिंक्स और मैं साइट्स के नाम शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि ये यूज कैसे करते हैं। मैं ये सब जो इश्यूज जो है सर्च स्ट्रेटेजी यानी क्या उसकी बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस कौन से हैं, कौन से यूज करने चाहिए उसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ। उसके बाद हाउ टू गेट एक्सेस टू दिस सोर्सेस मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और एक्सेस मिलने के बाद, एक्सेस है लॉगिन वगैरह जो होता है उसका वो, और उसके बाद फिर वो लॉगिन करके आगे क्या करना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सर्च स्ट्रैटेजी में मैं आपको जो सोर्सेस है उसके नाम बता रहा हूँ। तो सबसे पहला सर्च इंजन जो हमने यूज करना चाहिए वो तो है गूगल स्कॉलर। अच्छा सर्च इंजन है, अच्छा खासा डेटाबेस मिल जाता है इसमें। सो प्लेन गूगल करने से अच्छा आप गूगल स्कॉलर करिए, क्योंकि गूगल स्कॉलर जो है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ही बना हुआ है, और रिसर्च रिलेटेड जो भी डेटाबेसेस है वो गूगल स्कॉलर मेंटेन करता है, और अच्छा खासा रिपोजिटरी। द ओनली प्रॉब्लम विद गूगल स्कॉलर इज दैट you need to learn how to search Google Scholar, how to search। यहाँ पे आके इनपुट की जरूरत लगती है। ये तो सबको एक्सेस है। आप बोलेंगे कि आप जैसा का वैसा पूरा टॉपिक यहाँ पे डाल दोगे और फिर बोलेंगे कि सर इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। दैट इज नॉट द वे टू डील विथ गूगल स्कॉलर। उसकी स्ट्रैटेजी होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, तो वो मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन दे ही रहा हूँ। उसके बाद ये भी साइट का नाम आप नोट कर सकते हैं, जिसको ओपन एक्सेस थेसिस एंड डेजर्टेशंस कहते हैं, OATD ये नाम की साइट है। देखिए, हम लोगों को जो सर्च करना है, सर्च करते वक्त हम लोग अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को सर्च करते हैं। वो सर्च हो सकता है रिसर्च थेसिस का, वो सर्च हो सकता है रिसर्च आर्टिकल जिसको हम लोग रिसर्च पेपर्स कहते हैं। हम लोग सर्च करते हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स का। बाद में बुक और बुक रिव्यूज आप बोलेंगे, और रिव्यूज। ये अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को सर्च करने होते हैं। और बेसिकली हम लोग हमारी रिसर्च थेसिस के लिए जो ज़्यादा फोकस करते हैं वो रिसर्च थेसिस, रिसर्च पेपर्स और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा रिलाय करते हैं। हमारे पीआईटी के लिए जो लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर हम लोग लिखने वाले हैं उसमें सोर्सेस कहाँ से आएंगे, तो ये 3 सोर्सेस ज़्यादा रिकमेंडेड है। ओके। और ये जो है बुक और बुक रिव्यूज, ये जो है ना, ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर होता है उसमें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, पर रिकमेंडेशन तो इसका ही है, पार्ट अपार्ट। अभी जहां तक रिसर्च थेसिस का सवाल है, इलेक्ट्रॉनिकली पूरे के पूरे रिसर्च थेसिस अलग अलग यूनिवर्सिटीज से आपको कहाँ से मिलेंगे, तो जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में लगभग 756, ऐसा कुछ 756 या 759 यूनिवर्सिटीज है। और उसमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इनफ्लिबनेट जो है हमारा यूजीसी का, उसके साथ टाइप किया हुआ है, और उनके जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी के थीसिस बनते हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो इनफ्लिबनेट की जो साइट है उसके ऊपर वो अपलोड करते हैं, जिसको हम लोग शोध गंगा कहते हैं। ये आपको शायद सुन के मालूम होगा। तो शोध गंगा इज अ रिपोजिटरी ऑफ योर रिपोजिटरी। शोध गंगोत्री जो है ये सिनॉप्सिस का रिसर्च प्रपोजल, ऑनगोइंग रिसर्च जो है उसका रिपोजिटरी है। और एक है शोध सिंधु, और शोध सिंधु जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स का रिपोजिटरी है। ओके। ये थेसिस का रिपोजिटरी, ये है सिनॉप्सिस का रिपोजिटरी, और ये है रिसर्च पेपर का रिपोजिटरी। तो ये कैसे एक्सेस करेंगे वो भी मैं बता ही रहा हूँ अभी 2-3 मिनट में। पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं रिसर्च थेसिस की कि कहाँ से मिलेंगे, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो रिसर्च हुआ है यूनिवर्सिटी में पीएचडी का वो आपको शोधगंगा में मिल जाएगा। और इंडिया से बाहर का अगर आपको देखना है तो जो मैं साइट बता रहा था आपको, OATD, इस साइट पे आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी हुई है उनके थेसिस का रिपोजिटरी ये है, OATD। इसको आप विजिट कर सकते हो, ये साइट है उसके।
उसके बाद आपका NDLTD, ये भी एक अच्छा खासा रिपॉजिटरी है। उसके बाद OpenThesis.org, ये एक आपके थीसिस की रिपॉजिटरी है। उसके बाद एनलिस्ट है, इसको इंस्टीट्यूशनल लॉगिन लगता है, और नागपुर के कुछ कॉलेजेस में तो मुझे मालूम है कि ये एनलिस्ट का लॉगिन है। और आप जिस किसी कॉलेज में काम कर रहे हो उसके लाइब्रेरियन से एक बार बात कर लीजिए, आप अपने लाइब्रेरियन से, कि सर हमारे पास क्या एनलिस्ट का सब्सक्रिप्शन है। एनलिस्ट भी अच्छा खासा रिपॉजिटरी, यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसको इंस्टीट्यूशनल लॉगिन लगता है, और ये नागपुर के कुछ कॉलेजेस में तो पक्का है, ये मुझे मालूम है। तो आप अपने कॉलेज में चेक कर लीजिए कि आपके कॉलेज ने एनलिस्ट का सब्सक्रिप्शन लिया है क्या, तो अच्छी खासी क्वालिटी के जर्नल्स आपको आपके कॉलेज में ही मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक। और ऑब्वियसली अगर एनरोलमेंट किया होगा या रजिस्ट्रेशन किया होगा आपके कॉलेज में, कॉलेज ने एनलिस्ट के लिए, तो उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगता है, जो आपका लाइब्रेरियन आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद फार्मेसी के अगर कुछ रिसर्च स्कॉलर्स होंगे तो पबमेड नाम से एक रिपॉजिटरी है, यहाँ पे आपको रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएंगे। उसके बाद शोध गंगा और शोध गंगोत्री, दोनों चीजें, ये जो मैं बता रहा था आपको। उसके बाद और एक चीज जो आप कर सकते हो, नागपुर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके होम पेज पे मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ आपको। और पहले आपको एनलिस्ट बता का देता देखा ना हूँ क्या आपने? नागपुर। लॉगिन है अपने पास एनलिस्ट का? उसका एक्चुअली होता है अतुल एक्सेस सर थोड़ा म्यूट करेंगे, अतुल सर। जी सर, जी सर, जी सर। सर थोड़ा म्यूट। ओके, सो ये नागपुर यूनिवर्सिटी का होम पेज है, यहाँ से भी आपको एक्सेस मिल जाता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो ई लाइब्रेरी दिख रहा है ना, ये कैसे एक्सेस करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन देके। पर उससे पहले थोड़े से नाम बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी का होम पेज जो है, ई लाइब्रेरी, इसमें ये सब रिमोट लॉगिन, ई जर्नल जो मैं बात कर रहा था, ई शोध सिंधु, ये है ई पाठशाला, ई थेसिस, शोध गंगा, ये सब यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाता है। मैं समझा रहा हूँ आपको, ये शोध सिंधु है। जो आप नागपुर यूनिवर्सिटी के साइट से शोध सिंधु पे आओगे तो वहाँ पे आपको ई रिसोर्सेज दिखेंगे, और यहाँ पे फिर आप ब्राउजिंग कर सकते हो। ये सर्च विंडो है, यहाँ पे आप कीवर्ड्स टाइप कर लेंगे तो आपको ये जो भी लिटरेचर चाहिए वो मिल जाएगा। ये मैं करके भी दिखा रहा हूँ, 1-2 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये ई रिसोर्सेज है। उसके बाद जेगेट, ये भी एक अच्छा रिपॉजिटरी है, और मैं तो हेवीली यूज करता हूँ जेगेट रिसर्च पेपर्स वगैरह तैयार करने के लिए। और जेगेट की एक खासियत मैंने ये देखी है कि इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IIM IITs हम लोग बोलते हैं, रीजनल कॉलेजेस जिनको प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स कहा जाता है, या फिर कुछ ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज, उनके जो प्रोफेसर्स हैं वो लोग जो लिखते हैं ना, उनके आपको रिसर्च पेपर्स यहाँ पे मिलेंगे। और ये हाल ही में मैंने नोटिस किया, हम लोग एक पेपर का काम कर रहे थे, मैं टीम में ही काम करता हूँ जनरली, तो हमारी टीम से हम लोग मिलके काम कर रहे थे, और हमने जेगेट फिर ब्राउजिंग किया हमारे जो कीवर्ड्स थे उसको लेके। तो व्हाट वी कुड फाइंड, हमने एक्चुअली जेगेट को थोड़ा सा अंडरमाइन किया था। हमने पहले एक 7 रिसोर्सेस ऑलरेडी कवर कर लिए थे, जिसमें स्कोपस, WOS, जेस्टोर, स्प्रिंजर, विले, एमराल्ड, ये हमने कवर कर लिए थे। फिर जेकेट को थोड़ा सा हमने अंडर एस्टिमेट किया था कि वो क्या देखना है यार, बड़े बड़े तो कर लिए स्कोपस वोपस, तो अभी क्या जे। और व्हाट वी कुड फाइंड कि जेकेट जैसे ब्राउजिंग हमने शुरू किया तो इंडियन जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उन सब के पेपर्स हम लोगों को मिल गए। एक्चुअली मैं एक SLR जिसको कहते हैं, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, ये एक पेपर का प्रकार होता है जिसपे हमने हाल ही में काम किया है। सबमिशन हो गया है हमारा पेपर का, ABDC में ही सबमिशन किया है। लेट अस होप कि अभी वो पब्लिश हो जाए पार्ट अपा। तो उसमें रिपोजिटरीज यूज करनी होती है, और सबसे आखिर में फिर हमने सोचा कि कुछ पेपर्स हमको कम पड़ रहे थे, चलो यार जेकेट करके देखते हैं। तो टू अवर शॉक और सरप्राइज, आई डोंट नो, पर हम लोगों को अच्छी खासी क्वालिटी के अच्छे खासे पेपर्स मिल गए। और उस दिन से फिर मैंने जेगेट के बारे में बात भी करना शुरू कर दिया। एज यू कैन सी, ये इतने सारे, मैंने एक जस्ट एम्प्लॉयबिलिटी एक कीवर्ड डाला तो आप देख सकते हैं ये इतने सारे पेपर्स है इसमें। कैन यू बिलीव दिस बॉस, 33,000 तो सिर्फ इकोनॉमिक्स में है, सोशियोलॉजी में 25,000, इतने सारे क्वालिटी पेपर्स आपको मिल जाते हैं। वेल, साइंस डायरेक्ट, स्प्रिंजर, एमराल्ड, जेस्टोर, ये सब मैं डेमोन्स्ट्रेशन ही देता हूँ आपको, थोड़ा सा जितना अभी टाइम कम है, अदरवाइज इसके ऊपर तो पूरा 3-3.5 घंटे का सेशन रहता है। तो मुझे लगता है डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम आ गया है, मैं थोड़ा सा लॉग इन कर लेता हूँ।
Let me share my entire screen. So kindly confirm, can you see my Google search window? Yes, sir. Yes. Okay. सर आपण Okay, यहाँ पे 12च्या कुछ पुढे नहीं, आप थोडा 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ नंतर 12 वाजता वगैरे हो ठीक है मैडम. चालेल ना? हां, ठीक आहे सर. कंटिन्यू करा. तो मैं प्लेन गूगल की हॅलो. हाँ मैडम. हां. सर आवाज नव्हता येत. अच्छा. अच्छा. तो ये हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी का होम पेज है वेबसाइट का, और यहाँ पे आप देख सकते हो ई लाइब्रेरी, और सर यहाँ इट इज आप देख नॉट येट सकते डिस्प्लेड. हो. अच्छा, आता लेट मी आता शेअर आलं इट सर. अगेन. एक साथ 2 स्लाइड 2 चेंज झाला. अच्छा. अच्छा, मी एक मिनिट, ते थोडंसं बफर व्हायला कदाचित वेळ लागतो. आता दिसतंय का मॅडम? हो सर, आता दिसतंय. होम पेज दिसतंय. ओके. तो ये हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट का होम पेज है, और इसमें ई लाइब्रेरी आप देख रहे हो. इसमें यहाँ से गेटवेज दिए हुए हैं. गेटवेज है ना, शॉर्टकट दिए हैं कि आप यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच सकते हो. ये इनफ्लिपनेट जो मैं बात कर रहा था, यहाँ से आप जा सकते हो. ईपीजी पाठशाला ई थेसिस शोध गंगा का गेटवे यहाँ से दिया है. यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप सीधा शोध गंगा में पहुंच जाएंगे. शोध गंगा का मैं ब्राउजिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट मुझे डिस्कशन करने, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये यूज भी किया होगा, शोध गंगा इनफ्लिपनेट. तो जस्ट मैं गेटवे दिखा रहा था आपको. कहाँ गया ये? ओके. मैं इससे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बता सकता हूँ कि शायद जो दूसरा कोई नहीं बता पाएगा. मैं हूँ यहाँ पे. आप देखेंगे ये ई शोध सिंधु है, ये आप करके देखिएगा. नई जमा तो मैं आपके साथ 3 दिन हुई ही, पर आप आज मेरा सेशन होने के बाद करके देखिएगा. मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे. ये जो दिख रहा है आपको रिमोट लॉगिन, यहाँ पे आप जाएंगे. ये देखिए, ये शोध गंगा का गेटवे जो मैंने जब भी क्लिक किया था, यू आर ओवर हियर, और यहाँ पे आप रिसर्च सर्च थेसिस इनटू शोध गंगा यहाँ पे आए. और ये एडवांस सर्च हम लोग यूज करते हैं जनरली. तो शोध गंगा का मैं थोड़ा सा अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा. ओके, अगर नहीं, जिनको नहीं मालूम तो समझ लीजिएगा कि आप थोड़े से नेटवर्क के बाहर है. नेटवर्क में आना जरूरी है आपको, और कुछ और रिसर्च वर्कशॉप्स आपको विगरसली करने की जरूरत है. पर ये पीएचडी करने वालों को जनरली मालूम होता है. तो मैं फिलहाल शोध गंगा की बात नहीं करता हूँ, विद द एजम्पशन दैट कि ये सब आपको आता है, क्योंकि इट इज सो कॉमन ना. ये देखिए, एडवांस सर्च में मैं गया हूँ, यहाँ पे ये फिल्टर से ये सब यूज करके आप ब्राउजिंग कर सकते हो. तो मैं ये फिलहाल तो अवॉइड कर रहा हूँ, विद द एजम्पशन कि ये सब आपको आता है. मैं बात कर रहा हूँ जो आपको नहीं आता या फिर मालूम नहीं होगा उसकी. तो ये हमारी लॉगिन विंडो है, आप देख रहे हैं नागपुर यूनिवर्सिटी की. यहाँ पे आपको नेम और पासवर्ड डालना होता है. बात करते हैं ये आएगा कहाँ से आपके पास. तो अगर आप नागपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है सिनॉप्सिस का, तो वो जो रजिस्ट्रेशन लेटर होता है आपका, वो आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में दिखा देंगे, तो आपको इसका रिमोट लॉगिन और पासवर्ड मिल जाता है. अभी मैं बात कर रहा हूँ इसको यूज कैसे करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिटरेचर रिव्यू के लिए. तो मैं थोड़ा सा इसमें लॉगिन कर रहा हूँ, तो 1 मिनट के लिए मैं मेरी स्क्रीन जो है स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ. लॉगिन करने के बाद फिर से शेयर करूंगा. अलाउ मी अ मोमेंट. अरे लाईट आहे का रे? दारू वारू पाहिजे काय आहे अरे इकडे
ओके, मेरा लॉगिन तो हो चुका है सक्सेसफुली। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्रीति मॅडम, हे दिसतंय का? राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर युनिव्हर्सिटी रिमोट ऍक्सेस टू ई रिसोर्सेस. सर दिस Yes, sir. हाँ सर दिख रहा है। यस सर। ओके ओके अभी यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन से हम लोग यहाँ पे हैं। इसमें दो प्रकार के सोर्सेस है आपके पास, एक है ई जर्नल का रिसोर्स और दूसरा है ई बुक्स का रिसोर्स। तो ई बुक फिलहाल मैं नहीं डील कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च आर्टिकल्स की, जो हम लोगों को लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिखने में और इवन रिसर्च पेपर तैयार करने में भी आपको ये काम में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जो है इनको कहते हैं रिपोजिटरीज, ये है इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरीज। और जैसे मैं बात कर रहा था कि अच्छी क्वालिटी के एक्सेस है हमारे पास यहाँ पे। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है इसमें मिसिंग, जो है वो स्कोपस। और ऊपर देखेंगे आप, यहाँ पे जेगेट का एक्सेस है, जो मैं बात कर रहा था, जेगेट है यहाँ पे। उसके साथ साथ जो हमको बहुत ज़्यादा काम में आएगा वो है WOS, यानी स्कोपस और WOS ये सबसे बेहतरीन रिपोजिटरीज मानी जाती है। तो इंसिडेंटली स्कोपस तो नहीं है, क्योंकि स्कोपस बहुत महंगा है, एक साल का 15 लाख का उसका सब्सक्रिप्शन होता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। पर वेब ऑफ साइंस भी उसी के तोड़ का है। तो वेब ऑफ साइंस को हम लोगों को एक्सेस है यहाँ पे, टेलर एंड फ्रांसिस, विले जो मैं बात कर रहा था, स्प्रिंजर, साइंस डायरेक्ट, यानी ये एल्सवियर का वर्टिकल है। उसके बाद प्रोजेक्ट म्यूज, ये एक अच्छा रिपोजिटरी है। ऑक्सफोर्ड है, जे स्टोर जो मैं बात कर रहा था, ये तो हमने यूज भी किया है। एमराल्ड, ये भी बेहतरीन रिपोजिटरी है, एमराल्ड इनसाइट जिसको आप कहते हैं, इसका रिपोजिटरी, और तगड़ी क्वालिटी का है ये सब। तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, कोई एक ओपन करता हूँ मैं, जैसे वेब ऑफ साइंस जो बहुत बेहतरीन है, सभी अच्छे ही है पर वेब ऑफ साइंस का डेटाबेस बहुत ही तगड़ा है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन में थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, यूज कैसे करते हैं इसको। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इश्यू दिख रहा है, शायद ये लोड हो रहा है। टेकिंग सम टाइम। ये जब तक लोड होता है, मैं टाइम क्यों वेस्ट करेंगे ना, बात करते हैं थोड़े से। देखिए, आपको PhD करते वक्त नागपुर यूनिवर्सिटी से आपको रिसर्च आर्टिकल, जिसको हम लोग रिसर्च पेपर कहते हैं, वो रिसर्च पेपर तैयार करना और पब्लिश करना मैंडेटरी है। आपके रिसर्च टॉपिक से, PhD के टॉपिक से मिलता जुलते हुए टॉपिक पे आपको रिसर्च पेपर तैयार करना है, और वो पीयर रिव्यू जर्नल्स, ऐसा शब्द हमारे नोटिफिकेशन में यूज किया गया है नागपुर यूनिवर्सिटी के। पीयर रिव्यू का मतलब है ये स्कॉलरली जर्नल्स होते हैं, वहां पे ही आपको ये पेपर्स पब्लिश करना कंपलसरी है। अभी आपने अगर हाल ही में रजिस्ट्रेशन किया होगा और आपका डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है, तो बात ये होती है कि सर फिर रिसर्च पेपर कैसे तैयार करेंगे। यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है उसमें एक रिसर्च पेपर का उल्लेख दिखता है कि आपने एक पेपर तैयार करना चाहिए, और आपकी अभी तक आपके सुपरवाइजर से डिस्कशंस हुए होंगे, तो आपके सुपरवाइजर ने आपको हमेशा ये रिकमेंड ये किया होगा कि कम से कम 2 से 3 करके रखिए आप। तो बात ये तो होती है कि अभी डेटा कलेक्ट ही नहीं हुआ, आप अगर एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट प्लान ही नहीं हुआ है, आपके जो इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, वो सब अभी रेडी नहीं है, या परमिशंस नहीं मिली एक्सपेरिमेंटेशन की, या फिर आपने सर्वे का काम शुरू ही नहीं किया है, तो फिर रिसर्च पेपर तैयार कैसे करेंगे। तो रिसर्च पेपर तैयार करने के वैसे 2 तरीके हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। रिसर्च आर्टिकल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2। अगर आप टाइप्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल ऐसा इंटरनेट गूगल की सर्च विंडो में डालोगे तो आपको भलता ही कुछ तो भी दिखेगा, पर वहां पे जो आता है वो सब कुछ काम का होता है ऐसा नहीं। मैं जो रियल प्रैक्टिस में मैं खुद जो काम करता हूँ ग्राउंड लेवल पे, वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हो और कर भी सकते हो, वो मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा हूँ। रिसर्च आर्टिकल मुख्यत्वे ब्रॉड क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं वो 2 ही होते हैं। एक होते हैं ओरिजिनल आर्टिकल्स और दूसरे होते हैं रिव्यू आर्टिकल्स। ओरिजिनल का मतलब है दीज आर इंपिरिकल आर्टिकल्स,
इनको इम्पिरिकल पेपर्स कहा जाता है। इम्पिरिकल का मतलब है ये जो आपका रिसर्च स्टडी पीएचडी के टॉपिक के लिए जो डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है, वो डेटा यूज करके ही आप उसके ऊपर पेपर तैयार कर रहे हो। तो इस आर्टिकल को हम लोग इम्पिरिकल आर्टिकल कहते हैं। और आपने आपकी पीएचडी करते वक्त जो लिटरेचर रिव्यू की एक्टिविटी की है, लिटरेचर रिव्यू से जो डेटा आपने डाउनलोड किया है, जो भी पीडीएफ फाइल्स वगैरह आपने डाउनलोड की हुई है, वो यूज करके जो पेपर तैयार करते हैं उसको रिव्यू पेपर कहते हैं। दोनों का अपना पब्लिकेशन वैल्यू होता है। इवन मैंने भी अभी हाल ही में रिव्यू पेपर पे काम किया है और मैं बता रहा हूँ कि एबीडीसी में मैंने वो भेजा है। तो आप समझ सकते हो कि इन पर्टिकुलर पेपर की पब्लिकेशन वैल्यू तगड़ी होती है। और ये पेपर तब तैयार करते हैं जब आपका डेटा, पीएचडी का डेटा अभी तक कलेक्ट हुआ नहीं है और फिर भी आपको रिसर्च पेपर तैयार करना है, तो ये आपके पास ये ऑप्शन है। रिव्यू आर्टिकल्स मुझे जो मालूम है वो 7 प्रकार के होते हैं, और जो मैं पढ़ाता हूँ, वर्कशॉप्स लेता हूँ, वो 5 प्रकार आपको बता रहा हूँ। पहले होता है नरेटिव रिव्यू। नरेटिव रिव्यू आर्टिकल जिसको कहा जाता है। दूसरा होता है कंसेप्चुअल रिव्यू। तीसरा होता है एसएलआर, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू इसको कहते हैं। चौथा होता है बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू। और पांचवा होता है मेटा एनालिसिस। और ये पांचों पे मैं काम करता हूँ। रादर मैं पूरे 5-5 दिन के इसके वर्कशॉप्स भी लेता हूँ हर एक के। हाल ही में रिसर्च विद्या, जो मेरी खुद की रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी फर्म है, उसके बैनर में अभी मैंने एक पूरा 6 दिन का वर्कशॉप लिया था, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू पेपर तैयार कैसे करते हैं उसका। और आने वाले कुछ समय में बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का मेरा एक वर्कशॉप होने वाला है, पार्ट अपार्ट। तो आपको रिसर्च आर्टिकल तैयार करते वक्त ये 2 चॉइसेस है। यहाँ पे आपके पास अपना डेटा है तो ये आप तैयार कर सकते हो। आपके पास अपना डेटा नहीं है तो लिटरेचर रिव्यू से जो डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है वो डेटा यूज करके आप इसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन से प्रकार का आर्टिकल आपको लिखना है। अभी उसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि ये क्या बला है अभी। ओके, इसके अलग अलग फ्लेवर्स है, इसके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे एसएलआर के लिए प्रिज्मा नाम से एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट फॉलो करके, या फिर कोचरन के फॉर्मेट से कुछ वो फॉर्मेट फॉलो करके आप लिख सकते हो। इसके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं ये पेपर्स के। तो ये फॉर्मेट्स पता चल गए और कन्वेंशंस पता चल गए तो ये घर में बैठ के आप ये रिसर्च कर सकते हो। इसलिए इसको डेस्क रिसर्च कहा जाता है। इसको डेस्क रिसर्च, घर में बैठ के अच्छी क्वालिटी का रिसर्च पेपर तैयार करने की जो प्रोसेस है, दैट इज डेस्क रिसर्च, और जिसको रिव्यू कहते हैं। और ये जो है, ये है आपका फील्ड रिसर्च। फील्ड या फिर इसको हम लोग कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। फील्ड यानी सर्वे कर रहे होंगे तो फील्ड, और एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो लेबोरेटरी बेस्ड। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। और लिटरेचर रिव्यू, ये अगर पेपर तैयार करने हैं, अभी ये वाले जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पेपर तैयार करने हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस यूज करना कंपलसरी है, जिसका मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। वो रिपोजिटरीज, डब्ल्यूओएस वगैरह जो बताया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस या फिर रिपोजिटरीज। और आपको इसका ऑपरेटिंग नॉलेज होना जरूरी है, तब जाके ये पेपर बन पाएंगे। तो मैं एक छोटा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरीज को यूज कैसे करते हैं। मैं वापस जा रहा हूँ मेरे वेब ऑफ साइंस के होम पेज पे। ये आपको दिख रहा है अभी वेब ऑफ साइंस का सर्च विंडो या होम पेज? Yes, sir. थोड़ा करना पड़ेगा। ओके, ये होम पेज है और यहाँ पे ये सर्च विंडो है। इसके लिए ना आपको यहाँ आने से पहले एक थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करना होता है, जिसको कहते हैं कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन। आपका जो टाइटल है उसके कीवर्ड्स आपको पहले वर्कआउट करने होते हैं। 1, 2, 3 या 4 कीवर्ड्स हम लोगों को आइडेंटिफाई करने होते हैं कि आप कौन से कीवर्ड्स को लेके आर्टिकल सर्चिंग कर रहे हैं। तो हाल ही में मैंने जो काम किया है, ताज़ा ताज़ा है एकदम दिमाग में, तो वो हमारे कीवर्ड जो हमने यूज़ किए थे वो मैं जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बता रहा हूँ।
इससे भी पहले एक काम करते हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए, वो रहेगा गूगल स्कॉलर। पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि हम में से सब लोग तो गूगल स्कॉलर यूज करते ही है, तो मैं बता देता हूँ कि इसको अच्छे तरीके से यूज कैसे करते हैं। और प्रीति मॅडम, हे गूगल स्कॉलरची सर्च विंडो दिसते का? हो सर. ओके। अभी गूगल स्कॉलर में जब आप सर्च करोगे ना, तो उसमें ऑब्वियसली कीवर्ड सबसे पहले, आप कोई भी रिपोजिटरी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस को सर्च कर रहे हो तो उसकी एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि यू शुड हैव कीवर्ड्स विद यू, कि आप कौन से कीवर्ड्स ढूंढ रहे हो, उसके ऊपर फिर आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं। आप पूरा का पूरा टॉपिक या आपके पीएचडी का टाइटल इसमें नहीं फीड कर सकते हो। अगर वो टाइटल पे जैसे कि वैसे अगर लाख पेपर मिल जाए तो फिर आपका रिसर्च क्या काम का, ऐसा हो जाता है। तो वो वैसा नहीं होता है, आपको आपके टॉपिक के टुकड़े करने होते हैं कीवर्ड्स में, और वो कीवर्ड को लेके हम लोग ब्राउजिंग करते हैं। जैसे मैं एक थ्योरी पे अभी काम कर रहा हूँ, उसका टाइटल है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। ओके, ये मेरा कीवर्ड है, मैंने ये फीड किया और सर्च किया। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे 20,80,000 रिजल्ट्स आए। अभी ये मैं एक एक करके पढ़ना शुरू करूंगा तो शायद मुझे दूसरे जन्म में भी ये पढ़ना हो नहीं पाएगा, इतना थोड़ी ना पढ़ूंगा। अभी मेरा तो ये वन ऑफ द कीवर्ड है ना, ये तो मेरा वन ऑफ द कीवर्ड्स है। तो इसको लेके गूगल के पास जो भी है उसने मुझे ये दे दिया कि आशीष भाई ले लो, ये 20,80,000 है, कितने चाहिए ले लो। बट ये थोड़ा सा कम्बरसम टास्क हो जाएगा कि इसमें से काम की चीजें ढूंढना इतनी सारी लिंक्स में, इतनी सारी पेजेस में, तो ये काम हम लोग थोड़ा सा आसान कर देते हैं। इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने ये कमांड गूगल स्कॉलर को दी, तो ये गूगल स्कॉलर के डेटाबेस में जहां जहां थेरी ये वर्ड दिखा वो उसने मुझे दे दिया। जहां जहां ऑफ दिखा, जहां जहां प्लांट दिखा और जहां जहां बिहेवियर दिखा, ये उसने मुझे दे दिया। गेटिंग? पर मुझे ये सेपरेट वर्ड्स नहीं ढूंढने हैं, मुझे तो ये एज ए फ्रेज ढूंढना है। गेटिंग मी? अभी इसको मैं क्या करूंगा कि गूगल स्कॉलर को मैं बोल रहा हूँ कि यार तू अलग अलग मुझे मत बताइए, ये मुझे एक तरीके से पूरी की पूरी फ्रेज रिसर्च टाइटल में दिख जाए, वो फ्रेज मुझे चाहिए। तो मैं इसको डाल दूंगा डबल कोट में। डबल कोट में डालने से क्या होगा कि इसके गूगल स्कॉलर के रिपोजिटरी में जहां पे ये पूरी की पूरी लाइन ऐसी की ऐसी ऐसे स्पेलिंग के साथ जहां जहां है वो पेपर्स मेरे सामने आ जाएंगे। अभी मैं सर्च कर रहा हूं, देखिए अभी हुआ क्या, जब मैंने ये डबल कोट नहीं दिया था तो मुझे रिजल्ट्स आए थे 20,80,000। जैसे ही मैंने डबल कोट डाल दिया, ये 20 लाख का 2 लाख हो गया, यानी क्या 90% जो है वो उसने हटा दिया। गॉट इट? अभी मुझे इसका इफ सपोज और फाइन ट्यूनिंग करना है, मुझे लगता है कि सिर्फ एक कीवर्ड नहीं है, मुझे और एक कीवर्ड इसके साथ चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 कीवर्ड पे हम लोग काम करते हैं, और ये कीवर्ड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए डेफिनेटली ट्रेनिंग की जरूरत है, पार्ट अपार्ट। अभी टाइम कम है तो जितना पॉसिबल है उतना मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी दूसरा कीवर्ड जब हेलो, नो साउंड। आप हेलो, यहाँ पे टाइप करोगे, आप चल सकते फिर एक बार इंटरनेट। यस सर, साउंड में डिस्टरबेंस है मेरे कुछ? हाँ ये था बीच में सर, अभी चालू है, अभी ठीक है सर। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। सो मैंने दूसरा कीवर्ड फीड कर दिया और उसको भी डबल कोट में डाल दिया। अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, आप देखेंगे 2 लाख जो थे वो रिड्यूस हुए हैं लगभग 5,000 पे। किडिंग मी? मैं क्या, मेरे मन में जो टॉपिक चल रहा है, आई एम गेटिंग क्लोजर टू दैट पर्टिकुलर फिगर नाउ। किडिंग मी? अभी मुझे इंटरनेट शॉपिंग को ही, इफ सपोज किसी रिसर्च स्कॉलर ने इंटरनेट शॉपिंग ना यूज करते हुए इफ सपोज लिखा होगा ई शॉपिंग, किडिंग मी? तो फिर ई शॉपिंग या फिर इंटरनेट शॉपिंग, ये 2 वर्ड्स है और दोनों मुझे चलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिनोनिमस कीवर्ड के लिए मैं और कमांड यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ई शॉपिंग। ओके, अभी मैं फिर से ढूंढ रहा हूँ इसको।
आप देखेंगे जैसे ही और लगाते हैं ना, ये नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ जाते हैं, और जैसे ही एंड लगाते हैं वैसे ही नंबर ऑफ पेपर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया, इंटरनेट शॉपिंग उसके साथ साथ ई शॉपिंग जहां जहां दिखा उसको ऐड कर दिया वो पेपर्स को। तो ये हो गए 6640। अभी यहाँ पे चेक करिए आप, यहाँ पे लिखा है एनी टाइम, पर मुझे इफ सपोज पिछले 10 साल के ही रिसर्च पेपर्स ढूंढने हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कस्टम रेंज कर दूंगा, और ये यहाँ पे मैं रेंज डाल दूंगा कि मुझे कब से कब तक चाहिए। तो मैं पिछले 10 साल यानी 2011 से लेके 2020, ये 10 साल के पेपर्स मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं एडवांस सर्च। अभी आप देखेंगे ये है मेरे काम के पेपर्स। गेट मी? इसमें और फाइन ट्यूनिंग अगर आपको करना है तो और एक एंड लगा दीजिए आप। एंड इफ सपोज मेरा कीवर्ड है परचेस इंटेंशन, इसको लेके ढूंढ के देखते हैं, और जितने ज्यादा कीवर्ड लगाओगे नंबर ऑफ पेपर्स इट इज। ये देखिए जो मेरे दिमाग में चल रहा है, आई एम गेटिंग क्लोजर टू इट। अभी सिर्फ 2630 बचे हैं, और इसको चेक करना सिर्फ टाइटल से पता चल जाता है आपको कि आपके काम का है कि नहीं, पर ये बड़ी ही मीनिंगफुल एक्टिविटी है। और जहां जहां ये पीडीएफ लिखा है दिख रही है, इसका मतलब है ये फ्रीली डाउनलोडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसमें स्किप कर दीजिए आप, ये जहां पे पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो इसको मत रेफर करिए। और एक चीज, रेफर इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 2630 में से और फिल्ट्रेशन करना है, आप चेक करिए नंबर ऑफ साइटेशंस। ये दिख रहा है आपको, साइटेड बाय, ये 165 साइटेशन है, यानी ये अच्छी क्वालिटी का पेपर माना जा सकता है। इसका पीडीएफ में डाउनलोड कर लूंगा। यहाँ पे सिर्फ 17 साइटेशन है, तो ये आपके डिस्क्रिप्शन पे है। यहाँ पे आप देखेंगे 303 साइटेशन है, तो ये तो डाउनलोड करना ही चाहिए। उसके बाद 113 साइटेशंस, उसके बाद साइटेड बाय 95, ये भी ठीक ठाक है। 33 कम लग रही है, 296 है, इसको कर लेंगे। इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ 60 साइटेशन है, तो यू कैन अफोर्ड टू इग्नोर दिस पर्टिकुलर पेपर। और एक मुझे जो क्वेश्चन आता है वो शायद आपके मन में भी चल रहा होगा कि लिटरेचर रिव्यू का जो हम लोग चैप्टर लिखते हैं उसमें कितने रेफरेंसेस या साइटेशंस आपने देने चाहिए, ये एक क्वेश्चन मुझे बार बार आता है। तो ऐसा कहीं रिटर्न रूल नहीं है, पर मैं आपको क्वालिटी जर्नल जो है उसके कन्वेंशंस बता रहा हूँ। जैसे मैंने हाल ही में एक पेपर लिखा हुआ है, और वो एबीडीसी लिस्ट के लिए बनाया है, और उसमें हमने 20 22 21 पेजेस का पेपर है, वो 21 पेजेस का पेपर है, और हमारे लगभग 3 से 4 पेजेस हमारे रेफरेंसेस गए हैं। तो इसमें हमने कम से कम 125 साइटेशंस यूज किए हैं। 125, कैन यू बिलीव दिस? 20 पेजेस के लिए आपका थीसिस तो 300 पेजेस का होता है लगभग ऑन एन एवरेज, तो उसके लिए कितने होने चाहिए आप अंदाजा ले लीजिए। और जो क्वालिटी है आपके रिसर्च की, वो आपने एलआर कितना तगड़ा किया हुआ है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो मैंने गूगल स्कॉलर का आपको समझा दिया कि ब्राउजिंग कैसे करते हैं, उसको स्मार्टली यूज कैसे करते हैं। ये जो कमांड्स है ना, एंड और, इनको हम लोग कहते हैं बुलियन कमांड्स। बुलियन, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ट्राई टू यूज बुलियन कमांड्स व्हाइल यूजिंग एनी रिपोजिटरी। और आप जो रिव्यू आर्टिकल लिखते हो ना, उसमें आपने कौन से रिपोजिटरी यूज किए, कौन से आपके कीवर्ड्स थे, आपने कौन से बुलियन कमांड्स यूज किए, ये सब आपको एक एक बारीक बारीक चीज जो है ये रिव्यू पेपर में आपको मेंशन करनी होती है। वेल, अभी हम लोग जाते हैं वेब ऑफ साइंस में। चेक, इट इज वेब ऑफ साइंस। यहाँ पे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये कैसे यूज करेंगे। आपको एक रिपोजिटरी आ गई तो बाकी आ सकते हैं, पर मैं एक फिर से बताना चाहूंगा कि हर एक रिपोजिटरी का सर्च फंक्शन जो है, सर्च विंडो जो है, वो अलग अलग है, फंक्शंस थोड़े अलग अलग हैं। अभी वेब ऑफ साइंस जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा काम की चीज है, वो मैं पहले समझा रहा हूँ आपको। तो ये हमारे, हम लोग है बेसिक सर्च में, आपको एडवांस में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो एडवांस सर्च में। एडवांस सर्च भी बता देता हूँ क्या है ये बना। ये देखिए, यहाँ पे आप लैंग्वेज वाइज ब्राउजिंग कर सकते हो, डॉक्यूमेंट टाइप वाइज ब्राउजिंग कर सकते हो, आप टाइम वाइज ब्राउजिंग कर सकते हो, यानी इसको रिफाइन सर्च कहते हैं जनरली। तो पहले सिंपल बेसिक सर्च के डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ मैं आपको, और बेसिक सर्च से ही एडवांस में मूव हो सकते हैं रिफाइन करके, वो भी बता देता हूँ मैं आपको।
अभी मेरा पहला कीवर्ड है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। देखिए, जब मैं थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर ये स्पेलिंग टाइप कर रहा हूँ तो ये स्पेलिंग गलत दिखा रहा है ये, पर ये हमारी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो सही स्पेलिंग है, और मैं इसको एज ए ओ आर कर दूंगा। इफ सपोज मुझे ये दोनों वाले पेपर चाहिए कि जहाँ पे बिहेवियर जो हमने जैसे लिखा है ब्रिटिश इंग्लिश में, इस तरीके से भी अगर पेपर्स होंगे तो भी मुझे चलते हैं, और ये ओ यू आर अगर मैं निकाल देता हूँ तो ये भी मुझे चलता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक का स्पेलिंग तो कॉमन है, बिहेवियर तक, उसके बाद फिर एक तो यू आर आएगा या फिर सिर्फ आर आएगा। तो ऐसा अगर कंफ्यूजन है स्पेलिंग को लेके तो आप लगा देते हैं एस्टेरिस्क मार्क। मैंने स्टार लगा दिया यहाँ। ये स्टार का मतलब इसको वाइल्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। तो ये वाइल्ड कैरेक्टर का रोल क्या होता है कि स्पेलिंग में अगर दुविधा है ब्रिटिश अमेरिकन, और आपको वो दोनों टाइप के पेपर चाहिए कि जहाँ पे ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों स्पेलिंग अगर टाइटल में यूज किए गए हैं तो वो दोनों आपको चाहिए, तो आप इस तरीके से ये वाइल्ड कैरेक्टर यूज कर सकते हो। और उसके बाद एक अच्छी सुविधा यहाँ पे ये है कि आप ये कीवर्ड पूरे आर्टिकल्स में कहाँ ढूंढना चाहते हो, और ये गूगल स्कॉलर में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको यहाँ जाना होगा। ये जो टॉपिक दिख रहा है, ये टॉपिक का मतलब है कि जो रिसर्च पेपर अभी ये डब्ल्यूओएस हमको प्रोवाइड करेगा, वो रिसर्च पेपर में कहीं पे भी ये वर्ड आया तो भी चलता, ऐसा मतलब हो गया अभी। पर मुझे चाहिए कि ये कीवर्ड टाइटल में ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इस नाम ये पर्टिकुलर कीवर्ड जहां जहां जो टाइटल में आए हैं वो मैं चाहता हूँ कि डब्ल्यूओएस मुझे दे, तो मैंने यहाँ टाइटल सिलेक्ट कर लिया। मुझे अभी दूसरा कीवर्ड फीड करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड रो का जो फंक्शन है ये हिट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आया है बुलियन कमांड्स, आप देख सकते हो एंड और नॉट। नॉट तो इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, एंड और। तो मुझे एंड फंक्शन यूज करना है, डिफॉल्ट सेटिंग वही है। यहाँ पे मैं मेरा दूसरा कीवर्ड डाल रहा हूँ, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, और ये भी मुझे चाहिए इफ सपोज टाइटल में ही। यहाँ पे है टाइम स्पैन कि मैं कितने टाइम के ये पेपर्स ढूंढ रहा हूँ। इसको हम लोग थोड़ा सा और कमांड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट शॉपिंग, ई शॉपिंग वगैरह। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 10 साल का, तो ये कस्टम ईयर रेंज कर लेंगे यहाँ पे, और ईयर रेंज यहाँ से सेट कर लेंगे। ये मैं चाहता हूँ कि 2005 से 2021 तक आ जाए, और मैंने सेटिंग तो कर ली है। यहाँ पे सर्च टिप्स दी है, जो वाइल्ड कैरेक्टर वगैरह में बोल रहा था, उसकी गाइडलाइंस, इसको कैसे ब्राउज करते हैं डब्ल्यूओएस को, वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। Mhm. Mhm. ये सब Mhm. यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ टू सर्च इट। प्लीज थोड़ा सा म्यूट करिए अपने आप को। यहाँ पे सर्च रूल्स दिए हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो ये देखिए मैं जो बता रहा था कैपिटलाइजेशन को रूल्स, या फिर वाइल्ड कैरेक्टर्स जो मैं बोल रहा था, ये यहाँ पे दिए हैं। एस्टेरिस्क, डॉलर या क्वेश्चन मार्क आप यूज कर सकते हो। ये बुलियन कमांड्स यहाँ पे दिए हैं, ये सब कुछ यहाँ पे, ये एंड और ये सर्च ऑपरेटर जिसको बुलियन कमांड्स कहते हैं, इन सब का फंक्शन क्या है, कब यूज करना है, ये सब यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है जो आप ब्राउज कर सकते हो यहाँ से। अभी जाते हैं हमारी सर्च पे, ये आ गया हमारा, तो इसका सर्च पे कहाँ पे थे हम लोग। यहाँ पे थे हम लोग। तो अभी ये फीडिंग मैंने कर ली है पूरी, यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ। तो लेटेस्ट चेक ये कितने रिजल्ट्स देता है हम लोगों को। इसने 3 पेपर्स दिए हैं इसके ऊपर, इसने 3 पेपर्स दिए हैं। ये देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, ऑनलाइन शॉपिंग थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। और इसमें जैसे ही और आप लगा दोगे ना तो ये पेपर्स भर जाते हैं। और एक यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सपोज ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ पे और एक कमांड लगा देते हैं, और का इंटरनेट शॉपिंग, और यहाँ पे मैं टॉपिक कर लेता हूँ, अभी सर्च करते हैं। You need to play with this. 217 आए हैं, 217 आर्टिकल्स जो मैं चाह रहा था उसके ऊपर।
और ये पूरे 217 आर्टिकल जो है इसको आप एक स्ट्रोक में डाउनलोड कर सकते हो, ये क्रिएट साइटेशन रिपोर्ट से इसकी एक्सेल फाइल जनरेट हो जाती है। यहाँ पे ये देखिए चार्ट वगैरह भी बन के आ जाते हैं जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग यूज भी कर सकते हैं। ये देखिए ये चार्ट है पब्लिकेशन वाइज कि कौन से साल कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। तो आप देखेंगे 2020 में सबसे ज्यादा आर्टिकल्स, मैं जो टॉपिक ढूंढ रहा हूँ उसके ऊपर पब्लिश हुए हैं। और ये एक्चुअली यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इसको सेव एज करके, ओके। और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में ये चार्ट आप यूज कर सकते हो, वन ऑफ द चार्ट है ये, बाकी भी चार्ट बनाते हैं हम लोग बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में। और ये पूरा लेखा जोखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो आर्टिकल्स हैं ये सब। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इस आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट पे आप पहुंच जाते हो, जो हमको एब्स्ट्रैक्ट ही बेसिकली काम कर रहा था। ये देखिए ये सब डिटेल्स आ गए इसके। DOI सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मिल गया आपको, okay? और बाकी ये जर्नल के डिटेल जो साइटेशन देते वक्त हम लोगों को बिब्लियोमेट्रिक डिटेल्स लगते हैं वो। एब्स्ट्रैक्ट आ गया आपका, कीवर्ड्स यूज, ये सब इंफॉर्मेशन हमको काम में आती है। ये नंबर ऑफ साइटेशंस कितने हैं इसको 322, इसको क्लिक करेंगे तो किसने किसने कहाँ कहाँ साइट किया है वो डिटेल्स आ जाएंगे। So all the details you could get it from over here. So very useful search engine you can say, or rather repository, electronic repository. और इसका आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो, MS Excel में डाउनलोड कर सकते हो इसको। लेट मी चेक कहाँ पे ये है, सेव टू एक्सेल फाइल। सो इसको एक्सेल फाइल के फॉर्म में पूरे के पूरे 217 पेपर्स आ जाएंगे। तो ये PDF फाइल मेरी सेव हो रही है, यहाँ ये हो रही है, हो गई। ये ओपन करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। और ये सब आपको फिर साइटेशन देने में काम में आ जाता है इंफॉर्मेशन, और ये रिसर्च पेपर लिखने में भी ये सब काम में आता है डेटा आपका। ये देखिए बिब्लियोमेट्रिक चार्ट्स है, टोटल पब्लिकेशंस बाय ईयर और नंबर ऑफ साइटेशंस पर ईयर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एज इंडेक्स, उसके साथ साथ आपके टाइटल ये लोड हो रहे हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसर्च का टाइटल है, ऑथर है, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए ये सब यहाँ पे है, as you can see. Got it? So this is how we browse WOS। और बाकी भी रिपोजिटरीज इसी तरीके से हम लोग ब्राउज करते हैं, जैसे JSTOR सपोज फॉर एग्जांपल। JSTOR पे भी हमने बहुत काम किया है। इसको एक्टिवेट करना होता है नीचे जाके, तो वो हमेशा हम लोग एक्टिवेट करके ही करते हैं इसको। उसके बाद कौन सा, एमराल्ड का करते हैं, एमराल्ड का बहुत अच्छा है। तो 12 बज गए, बस ये एमराल्ड का दिखा देता हूँ आपको, फिर एक ब्रेक लेते हैं। ये एमराल्ड का होम पेज है, यहाँ पे आप एडवांस सर्च में जा सकते हो सीधा यहाँ से। और एडवांस सर्च पे फिर वही आप यहाँ पे कीवर्ड्स डाउनलोड एंटर कर सकते हो, फिर ऐड रो जैसे। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी आप टाइप करोगे यहाँ पे वो डबल कोट में ही डाल देंगे तो सर्च मीनिंगफुल हो जाता है। यहाँ पे ऑल फील्ड्स लिखा है, हमको ऑल फील्ड नहीं टाइटल ही चाहिए। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये कीवर्ड आपको एब्स्ट्रैक्ट में आया तो भी चलता क्या, और ये एमराल्ड की खासियत है। तो ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। जैसे मैं ये टाइटल में ले रहा हूँ, ऐड रो में मैं मेरा दूसरा कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंड कमांड सही है। उसके बाद इफ सपोज ऑनलाइन शॉपिंग, ऑल फील्ड की जगह मैं इस बार कर रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट। बाद में ईयर की रेंज दे देते हैं इसको 2003 से सपोज 2020। एक्सेस टाइप है इंपॉर्टेंटली यहाँ पे, ओपन एक्सेस में चाहिए आपको कि जो भी अवेलेबल है वो सब चाहिए, तो उसको छेड़ते नहीं, उसको फिर सर्च कर देंगे इस पर। दीपक सर थोड़ा सा म्यूट करेंगे।
चेक क्या गड़बड़ होगी। और इसी तरीके से स्कोपस का डेटाबेस है, तो वो सबसे तगड़ा। जैसे थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर मैंने फीड किया हुआ है, तो 5000 के ऊपर पेपर्स आए हैं यहाँ पे। तो इसका फिर हम लोग रिफाइन सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो एडवांस सर्च में जाके आप रिफाइन सर्च इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हमने एक ब्रेक लेना चाहिए। अभी जो पहला सेशन हुआ है हमारा ब्रेक से पहले का, इसको लेके कुछ डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं। प्रीति मैडम, डाउट्स तो Yes, कुछ sir. दिख नहीं रहे इनको, तो एक ब्रेक ले ठीक आहे लें। ना सर, आपण 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊया. हो ठीक आहे, मीटिंग चालूच ठेवते मी. हो ठीक है मैडम। ओके सर. Friends, don't ओके leave the मैडम। meeting. Please stay connected and take a 5 minutes refreshment break.